आदिलाबाद टाउन में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नाक़िस मियार के डबल बेडरूम मकानात तामीर किए गए। अगर उन इमारत को हाथ से छू लिया जाए तो डबल बेडरूम की दीवारें टूटने लगती हैं। टीआरएस हुकूमत गरीब लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रही। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस अक़लियती चेयरमैन साजिद खान ने आदिलाबाद टाउन में KRK कॉलोनी में तामीर होने वाले डबल बेडरूम घरों का दौरा करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। साजिद खान ने कहा है कि गरीबों के लिए बनाए जाने वाले डबल बेडरूम घरों का मियार नाक़िस है। हुकूमत ने कहा है कि वो आदिलाबाद के कस्बे में एक तालाब में डूबने वालों के लिए डबल बेडरूम के मकानात तामीर कर रही और ये कि उनके लिए तामीर की जाने वाली डबल बेडरूम की दीवारें हाथों को छूने की सूरत में टूट फूट का शिकार हो रही हैं। इल्जाम लगाया जाता है कि तामीर के लिए इस्तेमाल होने वाली रेत, ईंटों और सीमेंट में खराबी है। इन घरों की तामीर मुकम्मल हो गई और लोगों ने दावा किया है कि अगर वो इसमें रहेंगे तो उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। वो डबल बेडरूम होम्स के लिए जारी करदा फंड्स के अलावा दीगर फंड्स भी जारी करने का मुतालबा कर रहे। ताहम सरकारी हुक्काम को डबल बेडरूम घरों की तामीर के लिए क्वालिटी मटेरियल के इस्तेमाल पर जोर देते हुए जवाब देने का भी मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में शकील, रसूल खान, चंद्रलाल, राहुल, गुरुजी, खुर्शीद, करीम और दीगर ने शिरकत की। मट्टी का निशानी है परमिशन नहीं है। अपना मट्टी यूज करेंगे तो कैसा, वो तो देखो उसमें हाथ डालो तुम, उसमें तो तुम देखो ये तो पूरा मट्टी है। देखो आप अच्छे से देखो इधर। नहीं है ये, इसको क्या है फ्लोरिंग नीचे जो फ्लोरिंग के लिए वर्क के लिए लगाया है ना वो। आपका बात सही है। ये काम थोड़ा क्वालिटी करो। इतना घटिया काम करेंगे तो हमारे लोग गिर के मर जाएंगे यार। सर ऐसा घटिया काम नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, पूरा स्ट्रॉन्ग वर्क हो रहा है। ये कैसे स्ट्रॉन्ग वर्क है? हाथ से हलाए दीवार हलता है, हाथ में लिए मट्टी आता है, पूरा दीवार निकाल। డబల్ బెడ్రూమ్ ఇట్లా చూపియండి కెమెరామెన్ సార్. డబల్ బెడ్రూమ్ ఇవాళ మా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలతో విజిట్ చేసి గవర్నమెంట్ కడుతున్నాడు డబల్ బెడ్రూమ్ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్. మరి క్వాలిటీ వర్క్ లేదని మీడియాలో వస్తే మేము ఇక్కడ వచ్చినాం. స్టాండ్ క్వాలిటీ లేదు, మరి సిమెంట్ క్వాలిటీ లేదు. సిమెంట్ బ్రిక్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్న బ్రిక్ బాగాలేదు. ఇంకా ఆ వాల్స్ని టచ్ చేస్తే చాలు అది పడిపోతుంది. పిల్లర్స్ క్వాలిటీ లేదు. గ్రౌండ్ ఫస్ట్ సెకండ్ 3 ఫ్లోర్లు బిల్డింగ్ ఉన్నాయి కానీ క్వాలిటీ లేదని మా ఆదిలాబాద్ వాసులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఎందుకంటే ఈ కట్టే ముందే ఆదిలాబాద్లో ఉన్న పిట్టలవాడ, మరి ఖానాపూరు, అంబేద్కర్ నగర్ ఎవరెవర చెరువు దగ్గర ఉంటారు వాళ్లకు ఇది ఇస్తారని అప్పుడు గవర్నమెంట్ నుంచి చెప్పినారు. అయితే వాళ్ళే నిన్న నాకు స్వయంగా ఫోన్ చేసి సార్ మాకు ఇస్తున్న ఈ డబల్ బెడ్రూమ్లో క్వాలిటీ వర్క్ లేదట, మరి అది గోడలు పడిపోతున్నాడట, మరి మేము షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత ఇట్లా ఎవరైనా చనిపోతే ప్రాబ్లం సార్, ఒకసారి మీరు విజిట్ చేయండి. గవర్నమెంట్లో ఉన్న లీడర్సు ఎవరైనా ఉన్నా కానీ వాళ్ళైతే కమిషన్కే పరిమితం అయిపోయినారు. వాళ్ళకి ఏం సంబంధం లేదు, ఏ ఇష్యూ అయినా కానీ వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతలేరు. కనీసం మీరు పోయిన విజిట్ చేసి చెప్పండి అంటే నేను పోయి విజిట్ చేసిన, కాంట్రాక్టర్స్ రిక్వెస్ట్ చేసిన. ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ నుంచి మీడియా ద్వారా ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ఈ బడ్జెట్లో 5 lakhs కన్స్ట్రక్షన్ కాదు డబల్ బెడ్రూమ్, ఒక బెడ్రూమ్స్గా కాదు. పాపం వాళ్ళు చేస్తున్నారు కానీ గవర్నమెంట్ నుంచి 1,00,000 పెంచి కనీసం వాళ్లకు ఒక మంచి క్వాలిటీ డబల్ బెడ్రూమ్ ఇవ్వాలని నేను గవర్నమెంట్ని డిమాండ్ చేస్తున్నా. ఇంకా కలెక్టర్ మేడంతో రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, R&B వాళ్ళైనా కానీ డిపార్ట్మెంట్ అనే వాళ్ళు పోయి క్వాలిటీ వర్క్ చేపియాలా. మేడం దగ్గర నుంచి, కలెక్టర్ మేడం దగ్గర నుంచి స్పెషల్ ఫండ్ ఇచ్చి ఈ డబల్ బెడ్రూమ్ని మంచి కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలని. ఇంకోటి బాధ్యతగా మున్సిపల్ చైర్మన్ అయినా కానీ ఎమ్మెల్యే అయినా కానీ ఒకసారైనా విజిట్ చేయాలా. మీ ఏరియా, మీ ఓటరు, మీ కాన్స్టిట్యున్సీ ఏరియాకి మీరు గట్టిస్తానే వాదా ఇచ్చి 6 సంవత్సరం అయింది. ఒకటిసుగా డబల్ బెడ్రూమ్ ఆదిలాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎవరికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయలే. కనీసం క్వాలిటీ వర్క్ చేసి వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి డిమాండ్ చేస్తుంది. आदिलाबाद KRK कॉलोनी में
जा रहा है। तो ये लोग जो आदिलाबाद में जो तालाब है, चेरू है, वहाँ पे जो घर हमेशा जो पानी में डूबते हर साल, उन लोगों को ये घर बना के देने वाले हैं बोल के गवर्नमेंट की तरफ से इससे पहले बोला गया था। तो उन लोगों की एक रिक्वेस्ट पे कि उन लोगों को कुछ मीडिया में कि ये घर के दीवार अच्छे नहीं है, पिलर अच्छे नहीं है, यहाँ क्यूरिंग नहीं है, यहाँ पे सैंड का इस्तेमाल नहीं हो रहा सही बोल के जो न्यूज़ आई, तो हम लोग इंस्पेक्शन करने आए। तो आप लोगों को हम लोग बताएं कि किस तरीके से जो सो आज दीवारों की हालत है, उनके पिलर्स की हालत है, सीढ़ियों की हालत है। बड़े ही अफसोस की बात है कि सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए करोड़ों रुपए है, प्रगति भवन बनाने के लिए करोड़ों रुपए है। खैर बहुत कम कास्टों में ये कॉन्ट्रैक्टरों को दिए, इनकी भी क्या गलती है। छोटे से छोटे अमाउंट में, जिस अमाउंट में 1 बेडरूम बन नहीं सकता उसमें 2 बेडरूम बनाओ बोल के गवर्नमेंट प्रेशर करके ये बेचारे कॉन्ट्रैक्टरों को बनाओ बोल के बोल रहे। और उसके ऊपर भी फिर टीआरएस के लीडर्स और गवर्नमेंट के लोगों को कमीशन, हर चीज़ पे कमीशन देना, तो उनकी मजबूरी है। तो मैं कलेक्टर मैडम से गुजारिश करना चाहता हूं कि इनका अमाउंट बढ़ाएं। सीमेंट का रेट बढ़ गया, लोहे का रेट बढ़ गया, और गवर्नमेंट को लिखे कि जो सो आज सैंड की कीमत क्या है, जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद सीमेंट का रेट क्या हो गया। तो वही हम रिप्रेजेंटेशन करने आए कि जो लोग बीच में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स लाखों रुपए रिश्वत मांग रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर को तो बचना तो दूर, वो यहाँ के काम करके लॉस होके जाते। तो गुजारिश है कि जो सो कोई एक ऑफिसर अपॉइंट कर अच्छे तरीके से बनाया जाए और कुछ स्पेशल इनको फंड दिया जाए। जो 5-6 लाख रुपए में एक डबल बेडरूम का जो टेंडर हुआ था, उसमें डबल बेडरूम बनना नामुमकिन है, क्योंकि कोई भी आदमी हो बाहर से काम करने आ रहा, 2 पैसे उसको भी मिलना, लेबर कास्ट बढ़ गया है और बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो इस वजह से मैं हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये डबल बेडरूम को कलेक्टर मैडम खास तौर से इंस्पेक्ट करे और आके देख के उसके बाद वहाँ पर जहाँ जहाँ भी कमी है, खास तौर से होना बोल के कोई नहीं कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी जो भी उनके पास जो कमी है, जैसा रेती है क्वालिटी नहीं है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी है, सीमेंट मुझे क्वालिटी नहीं लग रहा है, और जो ईंट बना रहे हैं, ये ईंट में बहुत ज़्यादा कंकर पत्थर और मिट्टी है, इसके अंदर सीमेंट की कमी है। तो मैं हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूं कि ये 5-6 लाख रुपए का जो डबल बेडरूम है, इसका अमाउंट बढ़ाया जाए और कॉन्ट्रैक्टरों को थोड़ी सहूलत दिया जाए। सैंड की तकलीफ है उनको, और कमीशनों भी देना है, तो ये कमीशन का दौर हो गया है इस गवर्नमेंट में। तो ये लोग बहुत परेशान हैं। क्यूरिंग की वजह से भी वाल हल रहे हैं, पूरा वाल कंस्ट्रक्ट होने के बाद भी वाल को पकड़े तो हल जा रहा है। तो इस तरीके से मैं हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूं कि ये लोगों की मदद करें। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से, और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।